So let us start now. So good morning. Last lecture we discussed reactions of alkenes, right? And in that we discussed the test for unsaturation. So now let us move ahead. Uh, Now this reaction is not there in a textbook. Okay, I don't know what is the reaction number. Can anybody tell me? What is the reaction number? Ami? Fourth. Fourth? No. Is it fourth? Okay. Addition of HOCl or reaction with Cl2 and H2. So when Cl2 react with H2O, you will have HCl plus HOCl. This is called as hypochlorous acid. Hypochlorous acid. Now in a hypochlorous acid, OH, oxygen is more electronegative. So this gets delta minus and chlorine therefore gets delta plus. Okay. So when the heterolytic fission will take place, there is a formation of OH minus and Cl plus. अच्छा ये मैंने क्यों बताया तुम लोग को बताता हूं. When HOCl will react, एरो पे हम लोग लिखेंगे क्लोरीन वाटर. The negative part of the reagent goes to the carbon containing less number of hydrogen. मार्कोनिकॉफ रूल समझने के लिए मैंने ये बताया. So the structure is this. This is called as chlorohydrine. Chlorohydrine. So if we have CH2, double bond CH2 plus hypochlorous acid, Cl2 plus H2. What will be the product? CH2OH and CH2Cl. इथिलीन क्लोरोहाइड्रेट. और अगर IUPAC नेम लिखना है तो नंबर 1 ये, नंबर 2 ये. So IUPAC name इसका होगा OH group is preferred than the Cl. Preference 2-chloroethanol. अगर समझो मैंने प्रोपेन यूज किया CH3CHOH डबल बॉन्ड CH2 plus HOCl. What I said? OH minus. Negative part goes to the carbon containing less number of hydrogen. है ना? So the product will be CH3 CHOH CH2 Cl. अभी यहाँ पे नंबर कहाँ से करेंगे? End which is close to the functional group. So obviously 1, 2, 3. But principal functional group OH ही रहेगा. तो इसका नाम हम लोग ऐसे लिखेंगे 1-chloro ethanol. Oh, sorry, 1-chloro propane to all. Propane to all. Is that clear? Please note down this.
चलो हो गया लिख के सबका, एवरीबॉडी डन। Okay, good. Chalo, let us go for the next reaction. Oxidation. Oxidation of alkene by hot KMnO4. So कल हम लोगों ने देखा था cold dilute KMnO4. What is that? Bayer's reagent. It is called as a Bayer's test. Bayer's test is for unsaturation. Unsaturated hydrocarbons, when react with Bayer's reagent, the color get or the color of KMnO4 disappear. The purple color of KMnO4 disappear or it turns to colorless. Okay. यहाँ पे लेकिन चीजें अलग होती हैं. यहाँ पे मैं डायरेक्टली एग्जांपल लेता हूँ. CH2 डबल बॉन्ड CH2. अगर समझो मैंने मतलब फर्स्ट क्या होता है ये पहले समझो. फर्स्ट स्टेप में ना मुझे ये प्रोडक्ट मिलता है CH2OH and CH2OH which is further oxidized. ये इसका ऑक्सीडेशन हम लोग करेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाता है and there is a formation of HC, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है यहाँ पे and we have HC, मतलब 2 moles of HCOOH. What is that? Methanoic acid. Methanoic acid. और I also call that common name में उसको बोलते हैं formic acid. Okay. I hope everybody is practicing reactions daily. Everybody is practicing reactions daily, correct? अभी जरा ध्यान से देखना. नेक्स्ट है CH3, CH डबल बॉन्ड CH2. तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या मिलेगा? यहाँ पे होगा KMnO4, हीट KMnO4. तो ना मैं अभी शॉर्टकट ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन. तो जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या है? CH3CHO प्लस CH2O मतलब HCHO. Aldehydes can easily undergo oxidation. मतलब बॉन्ड ब्रेक हो गया. ये अल्डिहाइड, ये जो हाइड्रोजन है ना, इसका ऑक्सीडेशन होता है और मिलता है CH3COOH. दिस इज कॉल्ड एज इथेनोइक एसिड. दोनों नाम लिखना, और एसिटिक एसिड. और ये जो CH2 HCH है उसका क्या हो जाएगा? HCOOH. Now suppose we have CH3 CCH3 double bond CH3. ऑक्सीडेशन क्या होगा? ये देखो मैंने क्या बताया, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा O और O. ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन. CH3 C डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं एसीटोन. कॉमन नेम, IUPAC नेम है प्रोपैनोन. और दूसरा स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो है CH3CHO. Because this carbonyl group do not have directly attached hydrogen, this cannot be further oxidized.
देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है जिसको हाइड्रोजन अटैच्ड है, इसका आगे ऑक्सीडेशन होता है और मिलता है CH3COH, एसिटिक एसिड। समझ रहे हो? सब लोगों को समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है वो? यस, प्लीज नोट डाउन दिस एवरीथिंग एंड राइट नेम ऑफ कंपाउंड एवरी टाइम। ये है इथीन, दिस इज प्रोपीन, दिस इज 2-methyl butene। Oh, this required practice, that's it। Many of you have not given me the answer or rather not tried also। बस 3 लोगों के आंसर आ गए मुझे, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? एक बार मैं वापस इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। हाँ देखो मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम यू ऑल्सो। ओके, नहीं तो मुझे ऐसे लगता है ना कि मैं अकेले किधर तो अंधेरे कोठरी में अकेले से खुद से बात कर रहा हूं, ऐसे मुझे लगता है। ओके, सो देखो अभी यहाँ पे C डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, O और O, ऑक्सीडेशन। आई टोल्ड यू हाउ द ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस, ये मैंने मैकेनिज्म बताया तुम लोग। फॉर सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस मैं क्या कर रहा हूं, O और O, एक ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ, एक ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। सो ये फर्स्ट प्रोडक्ट है CH3, CHO हो गया। उसके बाद C डबल बॉन्ड हो CH3, CHO, ये दूसरा प्रोडक्ट है। CH3 CHO, तो मतलब 2 बार है इसलिए 2 टाइम्स लिखा। अल्डिहाइड्स मैंने क्या बताया कि जो हाइड्रोजन कार्बोनिल कार्बन को डायरेक्टली अटैच, अल्डिहाइडिक हाइड्रोजन that undergo oxidation, तो H changes to OH, CH3COH। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, इसको चेंज, इसका कुछ भी नहीं हो रहा है, इसे चेंज। ऐसे ही ये कंपाउंड है। ओके, आई होप यू हैव रिटन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सो C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, C डबल। सो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन आया, that undergo oxidation, so we are getting 3 oxobutanoic acid and here we have propane dioic acid। ये कैसे हुआ? ये है अपना परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, मैंगनेट आयन, परमैंगनेट आयन। So there is a formation of bonding, breaking of bonding like this way, and we have 2 carbonyl compound। परमैंगनेट का रिडक्शन होता है। Is that clear? Still anybody having any doubt? और किसी को डाउट है इसमें? वत्सल समझ में आया क्या मिस्टेक किया तूने वो? चलो नाउ लेट अस सी द यूजेस ऑफ अल्कीन्स। सबने लिख लिया ये? Alkenes are used as a starting material for the preparation of alkyl halides। हाँ, alkenes are used as a starting material for preparation of alkyl halide, alcohols, aldehydes, ketones, acids, etc. All these reactions which we discussed are leading to the formation of a new category of compound
a new compound from a new homologous series. Ethene and propene are used in the manufacturing of polythene, polypropylene. Those find use in a polythene bags, toys, bottles, etc. Ethene is used for the artificial ripening of fruit, such as mangoes. Okay. So मेरा एक क्वेश्चन है अभी होमवर्क, मतलब जैसे मैं तुम लोग को हर रोज देता हूं वैसे आज शाम तक मुझे सेंड करोगे. हाउ ethene is responsible for ripening of fruit. Okay, how ethene is responsible for ripening of fruits. Don't send me photos or screenshots of the material which you find on Google. उसको पढ़ो, समझो, लिख के मुझे फोटो भेजना. Write and send it to me. Write and send it to me. Do not, मुझे भी ढूंढने आता है यार, बस क्या. हाँ, I can also find it on a Google. मुझे पता है तुम लोग गूगल से ही ढूंढोगे, बट मुझे उसके स्क्रीनशॉट, कुछ लोग तो ना सिर्फ पढ़ते हैं ऐसे, हाँ, आगे अंदर क्या लिखा हुआ देखते रहे, फटाक से स्क्रीनशॉट सर को भेज दिया. You have to write it. Okay, अगर तुम लोग अपने लैंग्वेज में लिख रहे हो, then that will be much better. Is that clear? Yes. Okay, ये क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, लिख लो सब लोग ये क्वेश्चन. How is ethene responsible for ripening of fruits? इथीन के साथ साथ ना इथाइन भी यूज करते हैं, तो इथीन और इथाइन, इथीन और इथाइन भी यूज करते हैं. इथाइन are responsible for artificial ripening of fruits. Okay, chalo, now let us move ahead the next part, that is alkynes. What are alkynes? क्या है alkynes? Alkynes are unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons containing carbon-carbon triple bond. Containing carbon-carbon triple bond. Alkynes show position isomers, which is a type of structural isomer. मतलब उसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2. जनरल फॉर्मूला CnH2n-2. ओके, सो जनरली इनका अगर एक अल्काइन है तो उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा? 2. फॉर, मतलब मैं ऐसे लिखता हूं, देखो, राइट ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C4H6. तो पहले हम लोग निकालेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा इसका, बोलो, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? 4 कार्बन है, बराबर, 4 + 1 -6/2. सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? 2 हो जाएगा, है ना. तो
तो अगर 2 है तो इसका मतलब उसमें 2 पाई बॉन्ड है, करेक्ट। तो अगर 2 पाई बॉन्ड है तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? देखो पहला स्ट्रक्चर CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, this is nothing but but 1 YNE, नॉमेनक्लेचर भी लिखना है, ओके। दूसरा स्ट्रक्चर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, ये क्या है? ब्यूट 2 YNE। अच्छा मुझे बता सकते हो ये दोनों के बीच में कौन क्या रिलेशन है? दे आर व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर्स? Position isomer. Position isomers, very good. Position isomers, isomers, position isomers, very good. अच्छा अभी और देखना, ऐसा भी हो सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3। तो ये इसका नाम क्या है? ब्यूटा 1,3 डाइन, है ना, 1 2 3 4, और इसका नाम क्या होगा? ब्यूटा 1,2 डाइन। अच्छा ये एक दूसरे के क्या हो गए? पोजीशन आइसोमर, बट दिस इज स्ट्रक्चर 1, दिस इज स्ट्रक्चर 2, this is structure 3, and this is structure 4. Structure 1 and 2 3, 1 and 4 are क्या रहेंगे? Structure 1 and 3 and or structure 2 and 3 or structure 1 and 4 and structure 2 and 4, they are, बोलो कौन से टाइप के आइसोमर्स है वो? कम ऑन, कौन सा यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है। तो दे आर, बोलो Functional group isomer. फंक्शनल आइसोमर्स, दे आर कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमर्स, ओके। लिखो पहले, ये लिखो। और एक टाइप आएगा इसमें, हाँ इसका ही और एक एग्जांपल बता देता हूं मैं। ऐसा भी हो सकता है ना, रिंग और एक डबल बॉन्ड, तो स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर, मतलब ये क्या हो गया? साइक्लोब्यूटीन हो गया ना, ब्यूटीन। सो ये भी क्या हो गया? रिंग चेन आइसोमर हो गया। सो इट इज आल्सो काइंड ऑफ अ फंक्शनल आइसोमर, रिमेंबर दैट, ओके। और भी बना सकते हैं बट दे आर नॉट स्टेबल, दीज कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल।
चलो डन हो गया, लिख के हो गया सबका. मृण्मयी, झाला का लिहून? हो सर. वेदिका डन. Yes, sir. प्रतीक Yes, sir. लिहून झालं? हो sir. Now let us understand one more way. CH, triple bond CH. We know the IUPAC name for this is ethine, but in a common name it is famous by this name, acetylene. Okay, see here, ethine or acetylene. CH3, C triple bond CH. This is nothing but propyne. So this is called as methyl acetylene. Okay. If I write CH3, C triple bond CCH3, this is nothing but but2-ione, dimethyl acetylene. But as we move further, it becomes very difficult to name by trivial way. And therefore, the IUPAC name is important. Okay. Chalo, now let us go for the methods of preparations of alkynes. Methods of preparations of alkynes. Industrially, it is prepared from methane, the partial oxidation of methane. Okay, at high temperature. टेक्स्ट बुक में उन्होंने एक टेम्परेचर दिया है, वो गलत दिया है, 173 केल्विन, and they are saying it at a high temperature, which is wrong. Okay, which is wrong. स्ट्रक्चर सबको पता है उसका. देखो अभी प्रिपरेशन है मीथेन, on partial oxidation. Partial means limited supply of oxygen at 1173 Kelvin. Limited supply of oxygen, so that we are getting acetylene. We're getting what? Acetylene plus carbon dioxide plus hydrogen gas is liberated. Can balance this reaction. 6 methane, 2 oxygen, 2 carbon dioxide and 10 H2. पहले लिखो, फिर और बताता हूँ.
नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखो अभी सेकेंड फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड दिस इज ऑल्सो कमर्शियल प्रिपरेशन कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर ऐसे होता है it is just hydrolyzed okay it is hydrolyzed so that ये देखो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाता है कैल्शियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव सो OH and H यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो गया OH and H so what we have CaOH twice plus CH triple bond CH this is structure of calcium carbide. Calcium carbide on hydrolysis gives you what? Ethine. Next method is by dehydrohalogenation of vicinal dihalide. जरा ध्यान से देखना. From vicinal dihalides. देखो अभी रिएक्शन कैसे होगा देखो मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ CH2Cl 1,2-dichloroethane 1,2-dichloroethane I think I told you about vicinal dihalide. Vicinal मतलब halogen atoms are attached to the adjacent carbon atoms. Okay. इसका दूसरा नाम है इथिलीन डाइक्लोराइड. इथिलीन common name dichloride. This is first react with alcoholic KOH. और मैंने बताया था अल्कोहलिक KOH मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन किसका होता है बीटा हाइड्रोजन. ये देखो यहाँ से Cl गया और यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये बॉन्ड इधर आ गया. सो द स्ट्रक्चर इज CH2 डबल बॉन्ड CH Cl. दिस इज कॉल्ड एज विनाइल क्लोराइड. This is called as vinyl chloride or ethene chloride. Now this further dehydration is not possible by KOH. यहाँ पे मैं लिखता हूँ further dehydrohalogenation or further elimination is not possible by further elimination is not possible by alcoholic KOH. And for that purpose, we will be using stronger base than alcoholic KOH. We'll be using stronger base और वो stronger base है NaNH2 sodamide. Okay, sodamide in liquid NH3. Now here NH2 minus, कभी-कभी सिर्फ NH2 minus भी लिखते हैं. It's a strong base, stronger base than OH minus है. हाँ ये हम लोग पढ़ेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम करके एक चैप्टर है उसमें बीटा एलिमिनेशन Cl यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से. So the structure is CH triple bond CH बाय प्रोडक्ट होगा NaCl and what NH3. Understood? मिल गया ना एसिटिलीन. लिख लो.
चलो नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज वी हैव CH3 CHBr CH2Br 1,2-dibromopropane। अच्छा, इन सम बुक इट इज गिवन डायरेक्टली NaNH2, वो भी चलता है। मतलब जरूरी नहीं कि पहले अल्कोहलिक केयर्स लेना। मतलब अगर समझो मैंने NaNH2 डायरेक्टली यूज किया इन लिक्विड NH3, सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, जैसे मैंने बताया वैसे क्या होगा, पहले ये निकल जाएगा यहाँ से और ये हाइड्रोजन इधर आ गया, मतलब बॉन्ड CH बॉन्ड। सो बाय प्रोडक्ट क्या होगा, NaBr and NH3, and the main product will be CH3 CH double bond CH2Br. Further this react with NaNH2 same way in liquid NH3 क्या होगा, Br माइनस यहाँ से जाएगा और ये CH बॉन्ड इधर आएगा। So the structure will be CH3 C triple bond CH, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन, वहां से गया ना हाइड्रोजन CH, ठीक है। इसका नाम है 1-bromopropene, 1-bromopropene, and this is nothing but propine। चलो लिखो, जल्दी लिखो। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम टर्मिनल अल्काइल हैलाइड, अल्काइंस, टर्मिनल अल्काइंस। मतलब यहाँ पे क्या होता है देखो, RC ट्रिपल बॉन्ड CH। What do you mean by terminal alkyne group is present at the end of the carbon? This is react with NaNH2 or LiNH2 or NaNH2। उससे क्या होता है मालूम है, ये जो H plus है ना, that H plus is donated to the NH2 minus, so that there is a loss of NH2। So now we have, क्योंकि यहाँ से H plus गया ना, this lone pair retain on the carbon, H plus gaya, so this carbon get negative charge which is satisfied by, मतलब ये दोनों के बीच में जो bond है, that bond is ionic bond which is further react with alkyl halide। okay, तो क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल है ना, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये X माइनस चला गया, बाय प्रोडक्ट क्या होगा, LiX Li plus X minus, and we have RC triple bond C R dash। देखो ये टर्मिनेटेड डबल बॉन्ड अभी बीच में आ गया, मतलब समझो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, मैं इसको रिएक्ट करता हूं एक्सेस ऑफ NaNH2, एक्सेस, तो क्या होगा देखो, फर्स्ट प्रोडक्ट ऐसे रहेगा CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस and Na plus, which is suppose react with methyl iodide। The first product is what, CH ट्रिपल बॉन्ड CCH3। जब मैं लिख रहा हूं ना तो चीजें सिंपल लगती है, नाम लिखना, ये प्रोडक्ट मिला, व्हाट इज दैट, प्रोपाइन। मतलब 2 कार्बन का मैंने 3 कार्बन का कराया। अभी मैं और आगे जा सकता हूँ, फर्दर मैंने बोला ना NaNH2 इन एक्सेस, तो अभी ये वाला हाइड्रोजन चला जाएगा, सो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर, C माइनस ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसके साथ क्या होगा, Na प्लस होगा, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ मिथाइल आयोडाइड अगर रिएक्ट किया माइनस NaI, यहाँ पे भी लिखना मैं भूल गया, माइनस NaI, एंड
Therefore, the product is what? CH3, C ट्रिपल बॉन्ड और एक कार्बन बढ़ गया, ब्यूट 2 आयन ही हो गया. लिख लो. चलो डन हो गया. Come on guys, fast. So एक क्विकली हम लोग एसिडिक प्रॉपर्टीज देखते हैं एंड देन विल स्टॉप. एसिडिक प्रॉपर्टी of acetylene. Okay, now what do you mean by acidic property? Acetylene, when react with strong base like NH2 minus, then this hydrogen is donated, क्योंकि ये हाइड्रोजन डोनेट करते हैं, प्रोटॉन डोनर्स आर नथिंग बट एसिड. So क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं इसको, we can say that CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस NH3. एसिटिलीन क्या हो गया? एसिडिक हो गया. बट सर इथेन में और इथीन में हम लोगों ने नहीं किया, यहाँ पे क्यों किया बताता हूँ. हाइड्रोजन एटम और H प्लस आयन when bonded with electronegative atom, H plus ion when bonded with electronegative atom, it is acidic. Acidic मतलब it can be easily donated. याद करो HCl, HBr, HI, HF है ना, प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं हम लोग, राइट. तो H plus ion when bonded with electronic, अभी ये क्या मतलब, इधर इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, देखो CH triple bond CH. What is the hybridization of this carbon?
sp, sp. CH2 double bond CH2. What is the hybridization? sp2, sp2. CH3 single bond CH3. What is the hybridization? sp3, sp3. What is the percentage of s character? यहाँ पे है 50%, यहाँ पे है 33% और यहाँ पे है 25%. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ वो? और जिसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जिसमें ज्यादा होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. ये हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में. तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है तो ये sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा? sp कार्बन is more electronegative than sp2 carbon than sp3 carbon. और इसलिए ऊपर जो मैंने लिखा है उससे क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ. What should be the acidic strength? CH triple bond CH is more acidic than CH2 double bond CH2 than CH. See, यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर किसके ऊपर डिपेंड होता है मालूम है? Acidic strength directly proportional to the ease of donation of H plus ion. तो कहां पे H plus इजीली डोनेट किया जा सकता है? Acetylene. Understood? Please note down this. चलो तो यहाँ पे आज हम लोग रुकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में, सो मंडे के लेक्चर में आई विल फिनिश इट ऑफ अल्काइंस भी, क्योंकि अल्काइंस में ज्यादा रिएक्शंस नहीं है. सो नेक्स्ट वीक आई विल फिनिश दिस चैप्टर. ओके, हाइड्रोकार्बन्स में थोड़ा टाइम जाएगा अपना फिर भी, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स में बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोग को डिस्कस करनी है. एरोमेटिसिटी, अनएरोमेटिसिटी, अनएरोमेटिसिटी एंड एंटी एरोमेटिसिटी, ये चीजें हम लोग को डिस्कस करने हैं. उसके रिएक्शंस है वो हम लोग को करने हैं, उसमें थोड़ा टाइम जाएगा. ओके, तो हियर वी स्टॉप फॉर टुडे. नेक्स्ट मंडे के लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा अल्काइंस, और 2 लेक्चर मैं लूंगा मंडे में, एंड ट्यूसडे तो है ही अपना लेक्चर. ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच.